Yeah, so just like straight lines, for curves, we have this idea that you can easily find the gradient of a straight line. You can simply be like, okay, it is y2 minus y1 over x2 minus x1. And every curve is basically a collection of small straight segments connected together, forming a curve. So for example, if I have this curve, a parabola, then for a very short interval, this might be just like a straight line. अगर मैं इसको zoom in करूं, तो I will be able to see a straight portion somewhere here. Obviously, वो साथ साथ change होता जाएगा. Like कहीं पर वो कुछ होगा, कहीं पर वो कुछ होगा. लेकिन for a small enough interval, this is like a straight line. This is like a straight line here. This is like a straight line here. This is like a straight line here. And इन छोटे छोटे intervals को मिला के ये पूरी curve बनती है. That means we can say that there will be some way to figure it out the gradient of that small portion, और वो small portion का gradient can just be a function of x. So if you can do that, उसको हम differentiation कहते हैं. So what is the differential? Differential is simply the gradient of a portion of a curve if it was a straight line. Like हम उसको assume करते हैं कि वो उतने से portion के लिए एक straight line है और इस वजह से वहां पर उसका जो gradient होगा वो हम निकाल लेंगे. Obviously that portion has to be really small, और उसके लिए हमारे पास जो formal definition of derivative है, जो हमारे पास formal definition that d by dx of any curve f of x is basically f of x plus a minus f of x over a where a goes to 0. ठीक है, so ये हमारे पास formal definition है. लेकिन thing is कि अभी आप सिर्फ O levels advanced पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमने लिमिट को पढ़ा ना, हमें पता है कि अप्रोचिंग टू जीरो क्या होता है, और ना हमें ये सारी कैलकुलेशंस आती है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फंक्शन इन योर सिलेबस. इनफैक्ट देयर आर 4 जिनका आपको पता होना चाहिए. उनको हम कहते हैं लेट. ठीक है, एंड दैट इज द ऑर्डर दैट मैटर्स. और ये ऑर्डर आपका ए लेवल्स में भी चलेगा इफ यू आर गोइंग टू स्टडी मैथ्स. जस्ट इन ए लेवल्स दे आर गोइंग टू ऐड आई टू इट, सो इट विल बिकम आई लेट. बट फॉर नाउ वी विल जस्ट कंसीडर द लेट थिंग. What is late? Late says log, algebra, trigonometry, and exponential. If you are able to figure out this thing for each of these, then you can easily figure out the gradient. अब ये definition जो formal definition है, ये हम AddMaths में use नहीं करेंगे. Instead, in AddMaths, what we're going to do is we are just going to learn different techniques, different shortcuts to do this thing. ठीक है, ये सारा करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स होंगे जो हम इन लेट फंक्शंस के लिए सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद लॉग. ठीक है, अब लॉग के लिए हम ये कहते हैं कि व्हेनेवर यू हैव लॉग, सो लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन है ln 3x + 1. सो लॉग के लिए जब आप इस पूरे का डिफरेंशियल लोगे तो देयर आर 2 ways to write that. We can write d by dx of this thing, or we can say ln 3x + 1 and अब apostrophe है. ये इसका मतलब भी यही होता है कि ये डेरिवेटिव है. इसको हम कहते हैं न्यूटन्स नोटेशन और इसको हम कहते हैं लाइबनिट्ज नोटेशन, बिकॉज ये दो डिफरेंट लोगों ने दी थी. ठीक है, and they were roughly at the same time, so people say that okay, Leibniz invented calculus or Newton invented calculus, but we are not getting into that debate. You can fall into each camp depending on your preference, but the main thing is that if you have log and if you have ln, then the derivative is simply going to be 1 over the thing that is inside. I'm saying that jo aapke paas logarithmic function hai, if you have ln, so the technique to do the differential for that is that you simply take that thing, whatever is inside, and you do 1 over that. ठीक है, it doesn't matter कि वो क्या है. अगर आपके पास अंदर कुछ भी है, मैं आपको कहता हूं ln sin cube of x है let's say, तो इसका पूरे का डिफरेंशियल आपने लेना है. You want to do d by dx of that, you simply do 1 over whatever is inside multiplied by जो भी वो चीज है उसका डेरिवेटिव. ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं ln, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सर 1 into x minus 1 और नीचे होगा x plus 1. बेसिकली स्क्वायर रूट
x minus So 1 हाँ जी sir, and square. square root x plus 1 multiplied by Yeah, so as I was saying, basically, whenever you have log and you want to take derivative of that, you simply do this. Square root of what 1 over that, whatever is inside, and you multiply it by its derivative. Let's suppose मैं आपसे कहता हूँ ln ये है, तो it will simply be 1 over that, whatever it is, we don't care what it is, multiplied by, multiply के लिए dot का symbol मैं use करता हूँ, this derivative. That's it. अब इसका derivative कैसे निकालना है वो हम सीख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये इसको समझ लो. ओके, तो log वाला समझ आ गया. नेक्स्ट इज एल्जेब्रा. सो लॉग हो गया, अगला है एल्जेब्रा. एल्जेब्रा में डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? दैट whenever you have some function, usually the function is of the form n x power a x power n. वहां पर a एक नंबर है, x एक वेरिएबल है, and n is the power that it has. So when you want to take derivative of this thing, or if you want to write it like this, you're basically taking derivative. So derivative says you multiply the power. So आप इस function को ऐसे लिखो, multiply the power here. So multiply the power with the number and then subtract 1 from it. First multiply by power and then subtract 1 from it. Okay, that is how you know the derivative of algebraic function. Now algebraic functions can have powers that can be whole numbers, powers that can be fractions, power that will just not be zero. If it is any power, doesn't matter what it is, you simply do this. So अगर आपके पास 2x square का डेरिवेटिव करना है, तो it's going to be 2 times 2. So इस पूरे का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 times 2, which is 4, x to the power 2 minus 1, which is 1. Okay. Similarly, अगर आपने 2 square root x का डेरिवेटिव करना है, तो आप इसको पहले देखोगे कि this I can write as 2x to the power half. And then you multiply this with this, so half times 2 x to the power half minus 1. So that comes out to be 2 cancels out with 2 और आपके पास बन जाता है x to the power minus half, because half minus 1 is just minus half. इस पूरे का डेरिवेटिव क्या होगा? You simply take the power, multiply the power, subtract 1 from it. ठीक है, जो मर्जी हो जाए. अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर दो डिफरेंट फंक्शन हो, अगर मेरे पास हो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? इसमें इसका लेदर डेरिवेटिव होगा, इसका लेदर डेरिवेटिव होगा, और इनको हम ऐड कर देंगे. तो हम फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, 3 times 2 is 6, x to the power 3 minus 1 2, और फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव होगा 3 into 2 6, x to the power 1, and then add them. Okay, so that's how you figure out the derivatives for algebraic function. Similarly, if you have something like x squared plus 1 over x and you want to take derivative of this, it's always a good idea to simplify a function first. तो आप इसको x squared over x plus 1 over x कर सकते हो, आप उसको सेपरेट कर सकते हो. तो इसका डेरिवेटिव जब निकलेगा तो ये x x से कट जाएगा, तो हमारा बस बन जाएगा x to the power 1 plus x to the power minus 1. We have studied in indices that if you change the fraction, तो इसकी power minus 1 हो जाती है. Now that we have it in simplified form, we can be like, okay, 1 x to the power 0 minus 1 x to the power minus 2. What am I doing? I'm basically multiplying the number with power and subtracting 1 from it. So ये बन जाएगा खाली 1 और ये बन जाएगा minus 1 over x squared, या आप इसको x power minus 2 भी लिख सकते हो. Okay, so that's how you do it for algebra. For log, you take 1 over whatever is inside and you multiply by its derivative, and in here you're just going to do this. Now sometimes we have things that have powers on them, like whole powers. तो उसमें हम क्या करते हैं? Let's suppose x squared minus 5 whole power 3 है. तो इसमें you have to consider that you simply cannot access this algebraic function without first getting rid of this 3. So we will treat this as कि अच्छा ये बीच में कुछ algebra है, we are going to treat it as a black box. Black box क्या होता है कि हमें नहीं पता अंदर क्या है, बस उसकी power 3 है. तो we'll be like, okay, 3, ये पूरा जो भी अंदर है power 2 multiplied by जो box है उसका डेरिवेटिव. ठीक है, so let's try to do this with this. So x square minus 5 power 3. अब ये हमारे पास बॉक्स है. ठीक है, इस बॉक्स को करने के लिए एक और बड़ी यूजफुल टेक्निक यूजुअली पीपल डू इज कि हम इस पूरे को u कह देते हैं. हम कहते हैं कि ये u x square minus 5 है और हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपली है u क्यूब. तो u क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा?
u क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू यू स्क्वायर्ड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय u का डेरिवेटिव। तो मैं u का डेरिवेटिव लेता देख लेता हूं। u का डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स x पावर 1 माइनस 0, क्योंकि किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि x की पावर यहाँ पे 0 है। 0 टाइम्स 5 इज 0, तो वो जो भी हो वो मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाता है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3u स्क्वायर, तो u है x स्क्वायर माइनस 5 और u का डेरिवेटिव आ गया 2x, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, whenever you have something that has a whole power, तो आप उसको इग्नोर करते हैं उसके डेरिवेटिव के लिए। आप सिंपली पावर को पहले देखते हैं कि अच्छा पावर है तो जो भी अंदर है आई डोंट केयर अबाउट इट, आई जस्ट सबट्रैक्ट द पावर बाय मल्टीप्लाइंग इट फर्स्ट, तो ये बन जाएगा एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद व्हाटएवर इज इनसाइड। तो अंदर हमारे पास 2x उसका डेरिवेटिव बनता है, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस प्रोसेस कैन कीप ऑन गोइंग फॉरएवर। लेट्स सपोज मेरे पास आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 5 होल पावर 2 माइनस 3 होल पावर 2, इसका डेरिवेटिव चाहिए मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक ओके, ये मेरे पास बड़ा फंक्शन है, ये पावर 2 है, दिस आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, एवरीथिंग एल्स इनसाइड रिमेन्स एज इट इज, नथिंग चेंजेस देयर, पावर 1, एंड नाउ आई मल्टीप्लाई इट विद व्हाटएवर इज इनसाइड। तो अंदर वाले का डेरिवेटिव से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब अंदर वाले के डेरिवेटिव में क्या है कि इसका डेरिवेटिव है और इसका डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव तो मेरे पास बनता है 2 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 पावर 1, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा मैं अंदर वाले के डेरिवेटिव से। अंदर वाले का डेरिवेटिव बनता है 3 पड़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 5 का हो जाएगा 0 और माइनस 0। So basically you keep on doing this until you get to the simplified form, and these are ones, not the derivative symbols. So this is a complicated question, but the only complication here that you have to remember is that you keep on going until you get to the final x where you can take its derivative. The moment I've reached this x, मैं रुक जाऊंगा, तो इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, so that you get to the x inside. And once you're there, that's good to go, you're done with the derivative. So you keep on multiplying, and this is called chain rule. And chain rule applies not just to algebra but any function that you have. कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो खुद किसी और चीज का फंक्शन है, तो आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर वाले सारे रूल के साथ, ठीक है। So far we have learned 3 things. Number 1, how to take derivative of log and algebra. For log, you take 1 over whatever is inside multiplied by its derivative. And for algebra, you're like, okay, power multiply हो जाती है, power में से -1 हो जाता है, और the whole thing is multiplied by the derivative of inside. Second thing that we learned is that it's always a good idea to simplify a function first and then take its derivative. And the third thing that we have studied is chain rule, which says that if you want to get to x basically, then you, no matter how many brackets you have, every time you get a whole power, you take a derivative, multiply it with the derivative of the inside thing. जब भी whole power आएगी, आप उसका derivative लेंगे और अंदर वाले के derivative से उसे multiply कर देंगे. So let me give you an example. Let's suppose we have x cube plus 4 over x square. तो इसको पहले हम simplify करेंगे, हम इसको लिख देंगे x cube over x square plus 4 over x square, and then we'll take its derivative. तो x, इस पूरे का derivative हमने अब लेना है, तो x क्यूब और x स्क्वायर बेसिकली खाली x बन जाता है और ये बन जाता है 4x पावर -2. सो जस्ट x का डेरिवेटिव होगा 1x0 प्लस इसका डेरिवेटिव होगा -2 टाइम्स 4 x टू द पावर -3, क्योंकि पावर में से -1 किया दिया. टू विजुअलाइज इट बेटर मैं आपको इसको ऐसे लिख देता हूं. तो -2 मल्टीप्लाइड विद 4 एंड देन वी सबट्रैक्टेड -1 फ्रॉम इट. सो दैट वे आई गॉट 1 here -8 x minus 3, which I can write as 1 minus 8 over x cube. Okay, so that we can easily do. Once we have anything, you simply take the first simplify it, then take the derivative. अच्छा, अगली चीज है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ की स्किल क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ में आपने क्या करना है? You simply look at whatever it is the function of, whatever it is the function of. साइन है, कॉस है, टैन है या कोई और है,
सीकेंट कोसीकेंट जो कुछ भी है, उसके लिए सबसे पहले तो आप उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, या टेन के लिए भी चलो आप देख सकते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए उसके बाद आप उसका फॉर्मूला जेन में रखते हो। साइन ऑफ एनीथिंग दैट इज इनसाइड, लेट्स सपोज मेरे पास साइन ऑफ यू है और यू एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव होगा cos ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय u का डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया कि एवरी टाइम यू सी अ फंक्शन आप उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हो, तो u एक डेरिवेटिव इसका हो सकता है, u एक फंक्शन है तो cos कर लिया, sin का डेरिवेटिव cos है और उसके बाद हम u पे आ गए और u को डेरिवेटिव कर लिया उससे मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर मेरे पास cos ऑफ सम फंक्शन है, cos ऑफ फंक्शन u है, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान में रखना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उन सब के डेरिवेटिव्स नेगेटिव होते हैं, चाहे वो कॉट है, चाहे वो कोसेकेंट है, चाहे वो कॉस है, चाहे वो कुछ और है। जब वो c से स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव यूजुअली नेगेटिव होता है, सो माइनस साइन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और अंदर जो भी चीज है उसका हम डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली tan u का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर u मल्टीप्लाइड बाय u का डेरिवेटिव। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास है sin 2x स्क्वायर्ड, तो इसको मैं देखूंगा कि मेरे पास साइन का डेरिवेटिव पहले लूंगा, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और मैं cos को जब तक डील कर रहा हूं या साइन को जब तक डील कर रहा हूं एवरीथिंग एल्स रिमेन्स एज इट इज, नथिंग चेंजेस देयर, एंड आई मल्टीप्लाई दिस होल थिंग विद व्हाटएवर इज इनसाइड उसका डेरिवेटिव। तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 4x पर 1, and that's how you figure out that what this is the derivative of that function. So this is trigonometry. Trigonometry में भी आपने yes. So could you just give me 1 minute so I could process this example, please? Sure. Take your time. Thank you. Now, if you have multiple functions like 3 cos 2x minus 4 sin x squared by 2, और अगर इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है इस पूरे फंक्शन का, तो ऑल वी आर गोइंग टू कंसर्न आवरसेल्फ विद दिस कि इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग और पे उनको हम माइनस कर देंगे। तो 3 cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस 3 sin 2x होगा मल्टीप्लाइड विद व्हाटएवर इज इनसाइड, तो उसका डेरिवेटिव होगा 2। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ये माइनस होना है बाद में, इसका डेरिवेटिव होगा 4 cos व्हाटएवर इज इनसाइड। जब तक आप cos तक डील कर रहे हैं आप अंदर वाले को चेंज नहीं कर सकते, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद व्हाटएवर इज इनसाइड उसका डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर ओवर 2 का डेरिवेटिव होगा 2x पावर 1 ओवर 2, सो दिस कैंसल्स आउट और आपके पास ये पूरा डेरिवेटिव बन गया। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा -6 sin 2x minus 4x cos x square over 2, and that's your final answer. So remember chain rule that whenever you have a function inside you multiply its derivative regardless of what it is. इसको आप ऐसे समझो कि derivative is like opening a lock and x is like a chocolate that you have in your room in your drawer and you are standing in the garage. How will you get to that chocolate? How many locks will you have to open? So you'll probably have to open the main gate, then you'll have to walk to your room, open the door to your room, then you have to probably open the cupboard where you have put it, cupboard का लॉक खोलेंगे, and then you'll go to your drawer और drawer का लॉक खोलेंगे और वहां से आपको वो चॉकलेट मिल जाएगी। So that is a chain rule that even though you just wanted to get to chocolate, you can't be like, okay, I'll just open the drawer lock and I'll be like, आप गैराज में खड़े हो, drawer आया कहाँ से? नहीं आया ना आपके पास। आपने जब तक चॉकलेट के रास्ते में जितने लॉक्स होंगे सब खोलेंगे तो आप वहां तक पहुंचेंगे। जस्ट लाइक दैट व्हेन यू हैव x तक पहुंचने के लिए whenever you have a different function, whenever you have a power, that is the lock that you have to open. So मैं आपको एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल देता हूं। Let's suppose I have ln sin 2 square root x square minus 5, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लेना है, तो मुझे ये चॉकलेट चाहिए, बट आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका लॉक खोलना है, फिर 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 जाके मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो बेसिकली मेरे पास इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? लेट मी ट्राई टू डू इट विद यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लॉग का डेरिवेटिव निकालना है, तो लॉग के डेरिवेटिव में अंदर जो कुछ है वो पड़ा रहता है, उसको मैं नहीं छेड़ सकता। लॉग का डेरिवेटिव में, क्योंकि आप सोचो ना, यू आर ओपनिंग द गैराज डोर या आपके घर का मेन दरवाजा आप खोल रहे हो, तो अंदर वाले तालों को तो कुछ नहीं हुआ ना, वो वैसे के वैसे रहेंगे।
सो ये हो जाएगा 1 ओवर जो भी अंदर है पड़ा रहेगा. ओके गुड. नाउ यू आर इन योर main hallway. You're going to your room. So you open the door to your room. This is the sine, the second derivative that you have to open. So sine का derivative था cos. तो जब तक ये है तो अंदर कबर्ड के लॉक को कुछ नहीं हो रहा है, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा. आपने रूम का दरवाजा खोल लिया तो now you have to open the cupboard. This is the cupboard. ठीक है. So 2 पड़ा रहेगा और उसकी पावर क्या है? हाफ. बेसिकली दिस इज लाइक सेइंग कि ये स्क्वायर रूट की बजाय अगर मैं इसको पावर हाफ लिख दूं तो कोई गलत बात नहीं है. तो आई कैन सिंपली बी लाइक दैट दिस इज पावर हाफ ऑफ दिस होल थिंग. सो दिस मल्टीप्लाइज विद पावर हाफ and this whole thing inside simply remains as it is. उसको कुछ भी नहीं बढ़ता फर्क. And now you have opened your cupboard. So this is your final drawer where the chocolate is. So you'll be like, okay, 2x power 1 and there you go, minus 0. So you multiply these all things, obviously you have to simplify them. And that's how you get to your final function or final answer that you have. तो आपका final answer इन सबको combine करके आएगा. तो उसमें 2x भी है, उसमें cos 2 square root x square minus 5 भी है, उसमें sin 2 square root x minus 5 भी है और x square minus 5 का square root भी है because वो negative 1. So that is the final derivative of this scary looking function. But the main thing you have to consider whenever you have any function is कि मुझे x तक पहुंचना है. रास्ते में जब भी function change होगा, जब भी whole power आएगी, that is a lock that you have to open to get to that piece of chocolate that you so desire. And sir, this entire thing is called the chain rule? Yeah, this is a chain rule, yeah. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Now the last thing in differentiation is exponents. So exponents are basically very interesting functions because उसमें क्या होता है कि उसका वो function ऐसा है कि जिसका derivative भी वो खुद है. That's what e is. E power anything, let's suppose e power x है, तो इसका derivative भी e power x ही है. That is how it is defined. So अगर मेरे पास e power 2x है, तो it's like I have to get to x. तो पहले मैं e power 2x को e power 2x ही लिखूंगा क्योंकि उसका derivative वो खुद ही है. लेकिन according to chain rule I then have to get to x, तो मैं 2x का भी derivative लिखूंगा जो कि 2 बनता है. तो I multiply it with the derivative. So in other words, e power u का derivative is simply e power u itself multiplied by u का derivative, where u is another function. ठीक है? So that is all the functions in your syllabus, जिसको हम लेथ कहते हैं. ये सारे के सारे फंक्शन आपको आते होंगे तो आपको डिफरेंशिएशन आती है कि इनकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. ऑब्वियसली यू हैव नोटिस कि इसमें बहुत सारा कुछ याद करने वाला है. एग्जाम में वो आपको देता है, लेकिन अगर आपको चेन रूल आता है और आपको लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल अगर आपको लेट आता है तो आपको डिफरेंशिएशन सब आती है. ऑब्वियसली चेन रूल के साथ ये सब कंबाइन हो जाता है. ठीक है. Now one thing you have to consider that what do these things mean in real life? Derivatives are basically the ideas of change. They tell you how things are changing, what trends they are feeling, which is why derivatives play such an important role regardless of whatever you're doing. Wherever there is change, derivative will help you. So agar aap, let's suppose you are somebody working in the stock market, तो वहां पर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स विल हेल्प यू डिसाइड कि किधर को जा रहा है और इसमें कितनी चेंज आ रही है, एंड कैन यू कैपिटलाइज ऑन दैट चेंज, कैन यू अर्न मनी फ्रॉम दैट चेंज. सिमिलरली वी यूज चेंज ऑल द टाइम. आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या बाहर जा रहे हो या आप वॉक कर रहे हो, तो यू आर लुकिंग ऑल अराउंड यू कि अच्छा वो साइकिल चला के कोई बंदा आ रहा है, इधर से कोई बंदा पैदल भागता हुआ आ रहा है, उधर से दूसरी गाड़ी आ रही है. ठीक है. ऑल ऑफ दोस थिंग्स उनकी एक रेट्स ऑफ चेंज है और उन चेंजेस को हमारा दिमाग असेस करता है और एनालाइज करता है कि अच्छा मैं इन चेंजेस के साथ कहीं स्ट्राइक तो नहीं कर जाऊंगी. ठीक है. एंड व्हेन यू नो दैट, तो आपका दिमाग उस लिहाज से आपको मैनूवर करवाता है उस रास्ते में या उस व्हाटएवर सिचुएशन यू आर इन. ठीक है. दीज चेंजेस हम उनको मैथमेटिकली जब स्टडी करते हैं तो हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं. दैट्स द ओनली मेन कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट डेरिवेटिव इज और हाउ वी यूज इट इन रियल लाइफ. So obviously whenever things change, they don't keep on changing forever. Sometimes things get to a maximum or a minimum point जिसके बाद वो कहते हैं ना कि rise and fall and all that, तो हमें वो trends नजर आते हैं. जैसे कि उन trends को हम कैसे देखते हैं कि अगर एक curve है
किसी भी चीज की कर्व आप ले लें, वो ऐसे जा रही है तो उसमें ऑब्वियसली उसका ग्रेडियंट शुरू में बहुत तेज है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है। वो अचानक से चीज जीरो पे नहीं पहुंचती, आहिस्ता आहिस्ता उसमें ग्रेजुअल चेंज आता है। दिस ग्रेजुअल चेंज कैन बी एनालाइज यूजिंग ग्रेडियंट। और जहां पर वो चेंज जीरो हो जाता है, वेयर एवर द चेंज इज जीरो, वी से दैट इज अ स्टेशनरी पॉइंट। So in this curve, for example, this is a stationary point, this is a stationary point. क्यों? यहाँ पे कर्व ऊपर जा रही है, यहाँ पे कर्व नीचे आ रही है, चेंज हो गया ना रास्ता उसका। और यहाँ पर ऊपर से नीचे आने के लिए ऑब्वियसली इट हैज टू चेंज इट्स पाथ एट सम पॉइंट, और वहां पे टर्न लिया उसने पूरा 100%, ठीक है। और वो 180 का टर्न लेने के लिए ऑब्वियसली उसको स्टेशनरी पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। सिमिलरली इसको एक और तरह से आप सोच सकते हो कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे एक चीज 3 पे है और उसमें -3 पे जाना है, तो वो ग्रेजुअली ही जाएगी, वो 3 से 0 से गुजर के जाएगी। तो अगर एक चीज का ग्रेडियंट +3 है और वो -3 हो गया है, तो वो +3 से पहले 2 हुआ है, फिर 1 हुआ है, फिर 0 हुआ है, फिर -1 -2 -3 हुआ है। अचानक जंप्स नहीं लगा रहे। अगर कोई चीज जंप्स लगाती है तो हम कहते हैं कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, एंड इट्स प्रोबब्ली नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो वो हमें देखना होता है, लेकिन उस पर ज्यादा स्टडी हम ए लेवल्स में करते हैं। So these points where things take a turn or things behavior changes, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे rise है, यहाँ पे fall है, यहाँ पे rise again है। तो obviously there is a change in behavior. Every time there is a change in behavior, things pass through what we call stationary point. And a very simple test to know what a stationary point is कि stationary point पे जो derivative होता है, अगर function है तो उसका जो derivative होता है वो equal to 0 हो जाता है। ठीक है, अगर एक चीज राइज कर रही है तो उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, अगर एक चीज फॉल कर रही है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है कि विद एवरी पासिंग मोमेंट, विद एवरी न्यू वैल्यू ऑफ एक्स, इट्स वाई वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू कम अ पॉइंट वेयर इट्स बिकम जीरो, द चेंज बिकम जीरो। वो उस पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए रहती है और उसके बाद आगे निकल जाती है। ठीक है, हम उसको कहते हैं वो स्टेशनरी पॉइंट है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, इट डज नॉट चेंज हियर, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, और उसका बिहेवियर हमें कैसे पता चलता है कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है, यहाँ पे ग्रेडियंट नेगेटिव है। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर कोई चीज जाए, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है तो वो अपने मैक्सिमम को गुजर चुकी है। और अगर एक चीज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है तो ओवरऑल उसका ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नाउ इट हैज रीच्ड इट्स मिनिमम एंड देन इट्स गोइंग टू राइज। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट वी नो कि क्या चीज कैसे बिहेव कर रही है। तो अगर एक चीज का ग्रेडियंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो इसका मतलब है वो मैक्सिमम से गुजर के आया है, और अगर एक चीज का ग्रेडियंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो इसका मतलब है वो अपने मिनिमम से गुजर के आया है। एक तो ये बात। अनदर वे टू चेक कि वो चीज मैक्सिमम मिनिमम थी कि नहीं थी, वो ये कि आप डबल डेरिवेटिव लेते हो, और अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि वो चीज अपने मैक्सिमम से गुजर के आई, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है वो चीज अपने मिनिमम से गुजर के आई है। ठीक है, सो आपके पास वो चाहे प्रॉफिट्स हैं, चाहे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स हैं, चाहे वो प्राइस है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर की पॉपुलैरिटी है, ठीक है, कुछ भी है जिसमें चेंज आ रहा है, उस चेंज के ट्रेंड्स को देख के, उनके चेंज को आप एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम से गुजर के आया है, मिनिमम से गुजर के आया है, हाउ इज इट चेंज इट। और उसके लिए हम स्टेशनरी पॉइंट्स देखते हैं। एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, दे मे आस्क यू टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स, और उसके लिए तरीका क्या है कि आप डेरिवेटिव निकालो और उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे उसका ग्रेडियंट इक्वल टू 0 हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज लाइक देयर इज अ कंटेनर विद द वॉल्यूम 180x squared minus 6x cubed, and they're saying x is the length of that container. ठीक है, so they're like at what length will the volume be maximum? So आप कहोगे okay sure, अब v का डेरिवेटिव निकाल देते हो। v का डेरिवेटिव is basically algebraic, तो आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हो 360x माइनस, फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हो 18x और 3 माइनस 1 कर देते हो, और अगर 18x स्क्वायर आता है, ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया। नाउ यू आर लाइक ओके, यू वांट टू सिंपलीफाई दिस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना कि आपने इसको लेट सपोज इक्वल टू 0 करना है टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम। व्हाई? बिकॉज़ दैट इज वेयर इट सीजेस टू चेंज और उसकी स्टेशनरी पॉइंट आ जाता है। सो वन कॉमन थिंग दैट मेनी स्टूडेंट्स फील लाइक डूइंग इज कि वो 360x इक्वल टू 18x स्क्वायर करेंगे
और x को एक x से काट देंगे. Do not do that. उसकी वजह ये है कि you are basically getting rid of one x. In these equations, do not get rid of one x. If you really have to, take it as common. तो 360 minus 18x आपके पास आ जाएगा. आप x equal to 0 को अलहदा सॉल्व करो और 316 minus 18x को अलहदा सॉल्व करो. So if you solve it, it gives you x equal to 20 and that x equal to 0. So these are 2 points where the volume is maximum or minimum based on the situation here. Now we do not know कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है. क्या ये वॉल्यूम यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है या ये वैल्यू यहाँ पे मिनिमम हो रही है. तो उसके लिए दो तरीके हैं चेक करने के. एक तरीका ये है कि आपको कि अच्छा लेंथ 0 तो हो नहीं सकती एक चीज की, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं. हम x इक्वल टू 20 को देखते हैं कि अच्छा 20 जब x होगा तो वहां पर उसका ग्रेडियंट 0 है. तो इसका मतलब है कि हम 20 से पीछे कोई वैल्यू देख लेते हैं. हम 10 पे देख लेते हैं और 30 पे देख लेते हैं उसका बिहेवियर क्या है, क्योंकि 20 पे तो हमें पता है वो 0 है. 10 पे उसको देखते हैं. अगर मैं ग्रेडियंट में 10 ऐड करूं, ग्रेडियंट क्या है 360x minus 18x squared. ठीक है. अगर मैं इसमें 10 ऐड करता हूं तो ये बन जाता है 3600 at x equal to 10. This is 3600 minus 1800 which is plus 1800. Okay, so इसका मतलब है यहाँ पर ये पॉजिटिव है. अच्छा, अगर मैं इसमें 30 ऐड करता हूँ at x equal to 30, so it's going to be 360 times 30 minus 18 times 30 squared. So do you have a calculator? Can you do this? Yeah, minus 5400. That means it is going from positive to negative. जब एक चीज positive to negative जाती है, इसका मतलब है वो rise कर रही थी, fall कर रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आपको कि मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहती हूँ. आप v का डबल डेरिवेटिव करो. v का डेरिवेटिव है 360x minus 18x squared. आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे वो बनेगा 360 minus 36. क्यों? आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन है, x to the power 1. And now you'll be like, okay, 360 minus 36 into 20, because 20 is where it's happening. So when you do that, you will get a negative answer. Doesn't matter what the value is, as long as it's negative, it's going to call us or tell us that it's going to be maximum. So this is basically from your Cambridge exam papers. ठीक है. तो हमारे पास जितना भी डेरिवेटिव है, जो चेंज है, वो सारे का सारा इन दो टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है. क्या वो लार्ज चेंज है, क्या वो स्मॉल चेंज है. ठीक है. Sir, so when it's negative, it's maximum, right? Yeah, when it's negative, it's maximum. When it's positive, it's minimum. It's minimum. When it is 0, then that means we cannot determine it. Yeah, so that's either a point of inflection or it's undeterminable. And that sums up the whole concept of derivative. We will do practice problems for this tomorrow. I will take out some questions from past papers that will do. क्योंकि theory आसान होती है. It is the actual practice, it is the actual question solving that counts, that builds our skill.